رحیم. اوکے جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو نیکسٹ وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ نیورولوجی پارٹ. ٹھیک ہے, سی این ایس پارٹ اسٹارٹ کرتے ہیں نیورولوجی کے اندر. ٹھیک ہے, بہت امپورٹنٹ ٹاپکس ہے, وہ ہم انشاءاللہ کور کریں گے جو ان لوگوں نے مینشن کیے ہیں. اسٹارٹ کرتے ہیں جناب کیس سے. 36-year-old male brought to the emergency with history of sudden onset, repetitive contraction and followed by relaxation and become unconscious. ٹھیک ہے, become unconscious. This happen multiple times from last few months. EEG stand for electroencephalogram. ٹھیک ہے, اس طرح ای سی جی ہے الیکٹرو کارڈیوگرام, اس کو کہتے ہیں الیکٹرو انسیفیلوگرام. ٹھیک ہے, دس از اے ٹیسٹ تھرو وچ وی کین سی electrical activity of the brain. ٹھیک ہے جی, ای ای جی shows delta wave. ٹھیک ہے, most likely diagnosis. اوکے جی, یہ ہم سے جناب وہ ڈائگنوزز میں پوچھیں گے. 36-year-old male ہے, brought to the emergency with a history of sudden onset, repetitive بار بار muscle contraction and followed by relaxation, and the person suddenly become unconscious. unconscious ہو گیا اور یہ اس کو بار بار ہو رہا ہے, ملٹیپل ٹائم اس کو ہو چکا ہے. اور ای ای جی پہ کون سا ویو آیا ہے؟ ڈیلٹا ویو. ڈیلٹا ویو ان ای سی جی از امپورٹنٹ ون. ٹھیک ہے, کہ ای جی پہ اگر ڈیلٹا ویو آ جائے اور بندے میں کنٹریکشن ہے, دیکھیں پیشنٹ کو کنٹریکشن ہو جائے, پھر اس کی باڈی کیا ہو جائے؟ ریلیکس, اور فال ہو کر وہ بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ انکانشیس. اور اگر یہ معاملہ بندے کے ساتھ ساتھ بار بار ہو رہا ہو, دیٹ از اے کیس آف ایپیلیپسی. یہ کس کا کیس ہے؟ ایپیلیپسی کا کیس ہے. ٹھیک ہے جی, تو ایسے لوگ آپ دیکھ چکے ہوں گے, دیٹ از ایپیلیپسی. ٹھیک ہے جی, ایپیلیپسی از ویری ویری کامن ان پاکستان آلسو. ٹھیک ہے, دیکھیں اگر برین کے اندر بات سنیں, نیورونل ایکسائٹیشن, اگر نیورون ایکسائٹ ہو جائے بہت زیادہ, اس کو کہتے ہیں نیورونل فائرنگ. ان ادر ورڈ از کالڈ نیورونل فائرنگ. ایسا کنڈیشن جس میں کسی پیتھولوجیکل ریزن کی وجہ سے نیورون کیا ہو جائے؟ فائر کر جائے, وہ اپنے کام کو بہت زیادہ بڑھائے, تو نیورونل ایکٹیویٹی ول بی مور. کنڈیشن از نون ایز سیزر. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سیزر کہتے ہیں. مطلب نیورونل فائرنگ ان دا برین وچ از بیانڈ دا نارمل لیول, دیٹ از کالڈ سیزر. اب سیزر کی وجہ سے اگر بندے کو سیزر ہو جائے, جب نیورونل فائرنگ زیادہ ہوگی تو اس کی وجہ سے مسل پہ ایفیکٹ ہوگا کہ نہیں؟ دا مسل بیکم سیویئرلی اسٹیف اینڈ ریجڈ. سیویئر کنٹریکشن آف دا مسل ڈیو ٹو سیزر اٹیک از کالڈ کنولجن. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کنولجن. تو سیویئر کنٹریکشن of muscle during what? سیزر اٹیک. سیزر اٹیک میں انسان کی جو مسل کی کنٹریکشن ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کنولجن. دیٹ از نون ایز کنولجن. ٹھیک ہے جی, دس از کنولجن. اب اگر ایک پیشنٹ ہے, اس کو یہ کنٹریکشن ریلیکسیشن بار بار ہو رہی ہے, ایک اٹیک آف کنٹریکشن ریلیکسیشن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سیزر. فار ایگزامپل نیورونل ایکسائٹیشن ہو جائے, دیٹ از کالڈ سیزر,
اس کی وجہ سے جو باڈی پہ ایفیکٹ آئے گا کنٹریکشن کی شکل میں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کنولجن کہتے ہیں. لیکن اگر ایک بندہ ہے اس کی نیورونل ایکسائٹیشن بار بار ہو رہی ہے، دیٹ از کالڈ ریپیٹڈ اٹیکس آف سیزرز. اگر سیزر کی اٹیکس پیشنٹ کو دن میں یا گھنٹے میں بار بار ہو رہی ہو، بار بار وہ ریپیٹیٹیو کنٹریکشن اینڈ ریلیکسیشن میں جا رہا ہو، دیٹ از کالڈ ایپیلیپسی. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایپیلیپسی کہتے ہیں. تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ان ٹرمینالوجیز کے اندر ڈیفرینشیٹ نہیں کر پاتے کہ وٹ از سیزر، وٹ از کنولجن اور وٹ از ایپیلیپسی. تو یاد رکھنا ہے کہ سیزر از اے نیورونل فائرنگ ان دا برین، اور اس فائرنگ کی وجہ سے جو سیویئر مسل کی کنٹریکشن ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کنولجن. اور بار بار فائرنگ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایپیلیپسی کہتے ہیں. تو اس بندے میں یہ جو کنٹریکشن فالوڈ بائی ریلیکسیشن ہے، اور اس کی وجہ سے بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ انکانشیس. یہ ایک دفعہ ہوا ہے کہ ملٹیپل ٹائم اگر ورڈ آ جائے، آنسر ول بی ایپیلیپسی. اس کو ہم ایپیلیپسی کہتے ہیں. اٹ از اے سیزر اٹیک بٹ اٹ ہیپننگ اگین اینڈ اگین، سو دیٹ از کالڈ ایپیلیپسی. ایپیلیپسی کے کاز لکھیں. What are the causes of epilepsy? Why the patient develop epilepsy? What are the causes? Number 1, brain injury. Brain injury کوئی بندہ ہے روڈ ٹرپ ایک ایکسیڈنٹ میں لگ جائے، ایکسیڈنٹ کے بعد انسان کو ایپیلیپسی کے اٹیکس آ سکتے ہیں اگر برین ہیویلی ڈیمیج ہو جائے. نیکسٹ دیکھیں SPACE space occupying lesion. Space occupying lesion, SOL. What is this? Anything which can occupy space in the brain. اس کو کیا کہتے ہیں؟ Space occupying lesion. Edema ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ There is brain edema. Edema کے اندر excess accumulation of fluid ہوتی ہے. So fluid can occupy some space in the brain. It will compress the brain, can cause a seizure. Brain tumor ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ Brain tumors ہو سکتی ہے. It can occupy the space. Excess CSF production, hydrocephalus. Hydrocephalus is a condition in which cerebrospinal fluid is very high in the brain. So any condition in the brain which can damage the brain, they can cause seizures. وہ seizures کرا سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی. Seizure may be due to electrolyte imbalance. Electrolyte imbalance کی وجہ سے seizure ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. Electrolyte imbalance. اس میں سوڈیم، پوٹاشیم، الیکٹرولائٹ، اس کی جو بیلنس ہے اگر یہ خراب ہو جائے تو ڈفرنٹ الیکٹرولائٹ کین ڈائریکٹلی نیورون فائرنگ کراتی ہے، ان کین کاز سیزر. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ہیپیٹک انسیفیلوپیتھی. کس کے اندر ہوتا ہے؟ ہیپیٹک انسیفیلوپیتھی. واٹ از دس؟ دا پرابلم لائز ان دا لیور. پرابلم ہے تو ہے لیور کے اندر. ٹھیک ہے. اگر لیور مسئلے کی وجہ سے امونیا بڑھ جائے، امونیا از اے ٹاکسک گیس. امونیا کیا ہے؟ ٹاکسک گیس ہے. امونیا کین کراس بلڈ برین بیریئر. اگر امونیا بڑھ جائے، امونیا جب پروڈیوس ہوتی ہے باڈی میں، امونیا کو ہم کنورٹ کرتے ہیں یوریا میں، لیکن امونیا کو یوریا میں کنورٹ کرنا کس کا کام ہے؟ لیور کا کام ہے. اگر پہلے سے لیور میں کوئی ڈیمیج ہے، سیروسس ہے، ہیپاٹائٹس سی ہے یا بی ہے، تو پھر امونیا کنورٹ نہیں ہوگی کس چیز میں؟ یوریا میں. تو امونیا کا لیول بڑھ جائے گی اور یہ بلڈ برین بیریئر کو کراس کر کے ڈیمیج کر دیتی ہے برین کو. ڈیمیج ٹو دا برین when the problem lies in the liver, that is called hepatic encephalopathy. تو اس کے اندر بھی جناب پیشنٹ کو سیزر کے چانسز زیادہ ہو سکتے ہیں. کلیئر ہے؟ so this is what are the causes. نیچے لکھے ہائپوگلائسیمیا. ہائپوگلائسیمیا کے اندر بھی پیشنٹ کو سیزر ہو سکتی ہے and it can make the patient unconscious. اس سے بھی کیا ہو سکتا ہے؟ unconsciousness ہو سکتی ہے. So these are the different causes you people should know at least for the seizure. کہ سیزر کے جناب مختلف causes کیا ہے. So depending upon the history of the patient, presentation of the patient, ہم cause کی طرف پھر ruled out کرتے ہیں. کلیئر ہے؟ یہاں پہ لے کے اس کی ٹائپس لے کے سیزر کی کہ what are the types. Types of seizure are very important for the exam. Seizure can divided into two types, partial seizure and generalized seizure. ٹھیک ہے. سیزر کے دو ٹائپس ہیں. Seizure is broadly divided into two types. First is called partial seizure. Partial seizure. Another is called generalized seizure. Partial seizure and generalized seizure. ٹھیک ہے جی. Partial seizure کو focal seizure بھی کہتے ہیں. Focal seizure. Focal seizure. If
neuronal firing is seen in specific area of the brain, that is called a focal seizure या partial seizure. अगर ब्रेन के किसी खास जगह में न्यूरोनल फायरिंग हो रही है उसको फोकल सीजर कहते हैं या पार्शियल सीजर कहते हैं. इसका मतलब ब्रेन तो बहुत एक बड़ी सी एरिया है ना, इसमें सेरेब्रल कॉर्टेक्स का नाम सुना है कि नहीं? इन द ब्रेन वी हैव टू सेरेब्रल कॉर्टेक्स, राइट एंड लेफ्ट. देखे अगर फॉर एग्जांपल दिस इज अ ब्रेन, ये लेफ्ट साइड ब्रेन है और ये राइट साइड ब्रेन है, ये लेफ्ट सेरेब्रल कॉर्टेक्स है और ये राइट सेरेब्रल कॉर्टेक्स. ये भी एमसीक्यू है. देखें दिस वन इज लेफ्ट सेरेब्रल कॉर्टेक्स, हायर सेंटर इसको कहते हैं, और ये कौन सा है? राइट सेरेब्रल कॉर्टेक्स. ठीक है, दिस इज राइट सेरेब्रल कॉर्टेक्स. ये दोनों इस तरह होते हैं और ये आपस में कनेक्टेड होते हैं एक कनेक्शन के जरिए. दीज आर द ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स. ये क्या है? ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स है. द ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स विच कनेक्ट लेफ्ट सेरेब्रल कॉर्टेक्स विद राइट सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज नोन एज कार्पस कैलोसम. ये एमसीक्यूज भी आता है. ठीक है, ब्रेन के अंदर, दैट इज कॉल्ड कार्पस कैलोसम. ठीक है, बहुत कॉमन एमसीक्यूज है. व्हाट इज कार्पस कैलोसम? इट इज अ ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स. ये बहुत सी न्यूरॉन की आपस में क्या कनेक्ट हो चुकी है? एक्सॉन. एक्सॉन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द न्यूरॉन. ऐसी एक्सॉन्स की बंडल जो लेफ्ट सेरेब्रल कॉर्टेक्स को मिलाए राइट सेरेब्रल कॉर्टेक्स के साथ, उस एक्सॉन बंडल का नाम क्या है? कार्पस कैलोसम है. ठीक है, इंपॉर्टेंट है. ठीक है, देखे अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि इस सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर इस एरिया में, ये देखें इस एरिया के अंदर जो न्यूरॉन है, हमें सीटी स्कैन में पता चला कि इस एरिया की जो न्यूरॉन है वो ओवर फायर कर रही है. ये पूरा कॉर्टेक्स इन्वॉल्व है कि इसका एक पार्ट इन्वॉल्व है? एक पार्ट इन्वॉल्व है. अगर कॉर्टेक्स के एक पार्ट के अंदर न्यूरोनल फायरिंग बढ़ जाए उसको फोकल या पार्शियल सीजर कहते हैं. इसको क्या कहते हैं? फोकल या पार्शियल सीजर. इफ न्यूरोनल फायरिंग इज सीन इन अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ द कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स की एक पार्ट में सिर्फ न्यूरल फायरिंग को क्या कहते हैं? फोकल और पार्शियल सीजर. ठीक है, इसमें क्या होता है? इफ वन और बोथ कॉर्टेक्स इन्वॉल्व, इसमें या एक या पूरा एक या दोनों कॉर्टेक्स इन्वॉल्व होंगे तो उसको क्या कहेंगे? जनरलाइज सीजर कहते हैं. तो इसमें जनाब ये पूरा भी जा सकता है और दोनों भी जा सकती हैं. क्लियर है? अगर किसी को फोकल सीजर है, कौन सा सीजर है? फोकल सीजर है. अब सुन ले, विच टाइप ऑफ सीजर? दिस इज फोकल सीजर. अगर ये ट्रीट ना की जाए और ये डिस्चार्ज होती रहे तो इट मे स्प्रेड टुवर्ड द होल कॉर्टेक्स. फोकल सीजर में कैन प्रोग्रेस टुवर्ड जनरलाइज सीजर. इससे क्या बन सकता है? जनरलाइज सीजर. पूरा लोब इन्वॉल्व कर सकती है. और अगर ये पूरा कॉर्टेक्स इन्वॉल्व हो जाए फिर भी ठीक ना हो जाए तो दिस सीजर कैन ट्रांसमिट टुवर्ड राइट कॉर्टेक्स बाय द हेल्प ऑफ कार्पस कैलोसम. अगर ये कनेक्शन ना होता तो फिर सीजर ट्रांसमिशन ना होती. तो वन कार्टेक्स सीजर टू अनदर कार्टेक्स सीजर इज ड्यू टू विच कनेक्शन? कार्पस कैलोसम. ये भी क्वेश्चन आता है. ठीक है, इसलिए कार्पस कैलोसम शुड बी केप्ट इन द माइंड फॉर एग्जाम पर्पस. ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. अब देखें अगर एक कार्टेक्स या दोनों इन्वॉल्व है तो उसको क्या कहेंगे? टबस, जनरलाइज सीजर. अगर एक पार्ट ऑफ द कार्टेक्स इन्वॉल्व है तो उसको क्या कहते हैं? पार्शियल सीजर या फोकल सीजर कहते हैं. इसके फिर दो टाइप्स हैं. मैं इसलिए ये चीज पे टाइम लगा रहा हूँ कि दिस इज द एरिया वेयर द एग्जामिनर लव टू आस्क क्वेश्चन. ठीक है, कंसेप्चुअली पार्शियल सीजर के फिर कितने टाइप्स है? दो टाइप्स है. नंबर वन सिंपल पार्शियल सीजर, और एक को कहते हैं कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर. वेरी गुड. ठीक है, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर. हाँ जी, सिंपल पार्शियल और कॉम्प्लेक्स पार्शियल, इसमें फर्क है. देखें दोनों पार्शियल है. पार्शियल से मुराद यह है कि दोनों में एक एरिया की न्यूरॉन क्या होगी? फायर करेगी. अगर एक एरिया की न्यूरॉन फायर कर रही है लेकिन पेशेंट जो है उस पे सीजर अटैक आ रही है, झटके आ रहे हैं, लेकिन पेशेंट जो है ना उसकी होश और हवास बिल्कुल ठीक है, पेशेंट इज कॉन्शियस, दैट इज कॉल्ड सिंपल पार्शियल सीजर. और ऐसा एक एरिया की न्यूरोनल फायरिंग जिससे इंसान क्या हो जाए? बेहोश हो जाए, अनकॉन्शियस हो जाए, उसको कॉम्प्लेक्स पार्शियल कहते हैं. जिसका मतलब ऐसा सिंपल पार्शियल सीजर
विद, हाँ जी, रिटेन्ड कॉन्शियसनेस, ऐसा है ना, रिटेन्ड कॉन्शियसनेस, मतलब ऐसा सीजर जिसमें पेशेंट क्या हो, कॉन्शियस हो, मतलब होश व हवास उसके बिल्कुल ठीक हो, तो वो सिंपल पार्शल है। और इसमें पेशेंट क्या हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है। तो ये एमसीक्यूज भी याद रखे, सिंपल पार्शल वर्सेस कम्प्लेक्स पार्शल डिपेंड अपॉन दी कॉन्शियसनेस स्टेट ऑफ अ पेशेंट। अगर पेशेंट कॉन्शियस है वो सिंपल पार्शल है, अगर अनकॉन्शियस है तो वो कम्प्लेक्स पार्शल सीजर है। ठीक है जी। इसके टाइप्स लिखे, जनरलाइज सीजर के टाइप्स इंपॉर्टेंट है। जनरलाइज सीजर के टाइप्स आप लोगों को आने चाहिए। फर्स्ट वन इज कॉल्ड टोनिक सीजर। इसके अंदर पहला सीजर क्या है, टोनिक सीजर। ठीक है, सीवियर अटैक ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। टोन का मतलब क्या है, मसल कॉन्ट्रैक्शन। अगर किसी पे सीजर अटैक आ जाए और उसकी बॉडी पूरी क्या हो जाए, स्टिफ हो जाए, सख्त हो जाए, और उसी स्टेट में बंदा गिर कर फाल हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं, टोनिक सीजर। टोनिक से मुराद यह है कि इट इज अ स्टेट ऑफ सीवियर मसल कंट्रैक्शन, कि इसके अंदर इंसान की जो बॉडी है उसकी क्या होती है, स्टिफनिंग होती है। द बॉडी बिकम वेरी वेरी हार्ड एंड वेरी वेरी स्टिफ। ठीक है जी। अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, उसमें आ जाए टोनिक क्लोनिक सीजर, ये नेक्स्ट पॉइंट है, टोनिक क्लोनिक सीजर। पाकिस्तान के अंदर जितने सीजर के पेशेंट हैं उसमें मोस्ट कॉमन वेराइटी कौन सी है, टोनिक क्लोनिक सीजर। टोनिक क्लोनिक सीजर आर मोस्ट कॉमन इन पाकिस्तान। और एक और पॉइंट एग्जाम में याद रखें, इस सीजर इज आल्सो नोन एज ग्रैंड माल सीजर। इसको क्या कहते हैं, ग्रैंड माल सीजर। तो ग्रैंड माल सीजर या टोनिक क्लोनिक सीजर ये एक ही चीज है। ठीक है। रिपीटिटिव टोनिक का मतलब क्या होगा, कंट्रैक्शन, बॉडी पहले इनिशियली क्या हो जाएगी, कंट्रैक्ट स्टेप हो जाएगी, बट फिर क्या हो जाएगी, बट लेटर रिलैक्स, रिलैक्स हो जाएगी। देखिए इंसान इस तरह होगा, पेशेंट को झटके लग जाएंगे, बॉडी क्या हो जाती है, स्टेप, वो जोर करते हैं, थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाती है, रिलैक्स, और बंदा फॉल करके अनकॉन्शियस हो जाता है। तो ऐसा अटैक जिसमें इनिशियली बॉडी स्टिफ हो जाए और बाद में बॉडी क्या हो जाए, रिलैक्स हो जाए, तो तुम कहते हैं टोनिक क्लोनिक सीजर। क्लियर है। अभी जो आप लोग को मैंने सिनेरियो लिखवाया है पहले इनिशियली, उसमें पहले बंदा क्या था, स्टिफ था, फिर बाद में रिलैक्स हुआ, तो वो एपिलेप्सी तो है। अगर कॉमनली वो ये पूछे कि ये सीजर का कौन सा टाइप है, दैट इज ग्रैंड माल सीजर और टोनिक क्लोनिक सीजर। ये सीक्यूज आप लोगों से वो पूछते हैं कि ऐसा सीजर जिसमें इंसान को अल्टरनेट स्टिफनिंग और रिलैक्सेशन आ जाए, दैट इज कॉल्ड टोनिक क्लोनिक। ठीक है, इसको ग्रैंड माल सीजर भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें एक होता है मायोक्लोनिक सीजर, मायोक्लोनिक। ठीक है, मायोक्लोनिक सीजर, मायोक्लोनिक सीजर। ठीक है जी। मायोक्लोनिक सीजर के बारे में याद रखें, इट इज क्विक, मतलब सडनली क्विक और जर्की मूवमेंट। इसमें बंदा जर्की वाइब्रेटिंग मूवमेंट करता है, वाइब्रेशन करता है इस तरह। पेशेंट फॉल नहीं होता, गिरता नहीं है, जहां पे वो खड़ा है या बैठा होता है वो ठीक होता है, लेकिन जस्ट वाइब्रेशन करते हैं सीजर में। इसको कहते हैं मिनी वाइब्रेशन, जर्की मूवमेंट, दैट इज कॉल्ड मायोक्लोनिक सीजर। कभी कभार सीजर का होता है नाम एटोनिक सीजर। इसको क्या कहते हैं, एटोनिक सीजर। हाँ जी। व्हाट इज एटोनिक, ऐसा सीजर जो बंदा चलते चलते जा रहा हो, उस पर आप समझे भी नहीं और वो गिर जाए, अनकॉन्शियस हो जाए, मतलब सडन फॉल। इसको क्या कहते हैं, सडन फॉल। वैसे आप लोगों ने एक चीज सोचिए, अगर आज आप बैठे हैं और मैं खड़ा हूं, वजह पता है क्या है, मसल की कंट्रैक्शन है कि रिलैक्सेशन है। मसल में टोन्स है, कंट्रैक्शन है, तो हम बैठे भी है और खड़े भी है। अगर ये टोन खत्म हो जाए तो बॉडी सपोर्ट है, टोन प्रोवाइड बॉडी सपोर्ट, पोजीशन सपोर्ट। अगर टोन चले गए, कंट्रैक्शन चली गई, बंदा चलते चलते गिर जाएगा, क्योंकि जब तक टोन है अब चलते हैं ना, टोन खत्म हुआ तो बंदा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फॉल हो जाएगा, अनकॉन्शियस। तो एटोनिक सीजर में टोन्स कंप्लीटली खत्म हो जाते। ऐसा सीजर जिसमें टोन्स एब्सेंट हो जाए और बंदा चलते चलते गिरकर अनकॉन्शियस हो जाए, उसको एटोनिक सीजर कहते हैं। और ये मिस कंफ्यूज कर देते हैं हम लोग किस चीज के साथ, पेंटिंग के साथ। किस चीज के साथ,
फेंटिंग, फेंटिंग का नाम सुना है कि नहीं? व्हाट इज फेंटिंग? सडन फॉल विच बिकम अनकॉन्शियस। फेंटिंग हर उस फॉल को कहते हैं चलते चलते इंसान बाजार में गिर जाए और वो अनकॉन्शियस हो जाए, उसको क्या कहते हैं? फेंटिंग। अगर उस फेंटिंग का वजह ये होता है, जब हम बाद में देखते हैं उसको हाइपो क्या होता है? ग्लाइसीमिया। तो हाइपोग्लाइसीमिया कैन कॉज फेंटिंग। लेकिन कभी कभार चलते चलते बंदा गिर जाता है और वो अनकॉन्शियस हो जाता है, और जब आप उसकी ब्लड शुगर चेक करते हैं तो वो नॉर्मल होता है कि नहीं? वो नॉर्मल होता है। लेकिन जब हम ईईजी करते हैं तो उसमें सीजर होता है। तो ऐसा सीजर जो फेंटिंग के साथ मिस्टेकनली हम कंफ्यूज करते हैं, और इसमें बंदा चलता हुआ बंदा जो है ना गिर कर अनफॉल होकर कॉन्शियस हो जाए, उस सीजर का नाम क्या है? एटोनिक सीजर है। बात समझ गए कि नहीं? तो विच सीजर इज मिसकंफ्यूज विद फेंटिंग? आंसर इज एटोनिक सीजर। एक और क्वेश्चन क्लिनिकली जो डॉक्टर लव टू आस्क फॉर एग्जाम, अगर क्वेश्चन आ जाए इफ अ पेशेंट सडनली फॉल इन अ समर सीजन। अभी देखे ना, एसी भी चल रही सब कुछ, फिर भी पसीने आ रहे हैं क्योंकि हॉट एनवायरनमेंट है। दिस इज द पीक एनवायरनमेंट इन द समर सीजन। इसमें आप लोग न्यूज पे देखते हैं स्कूल में इतने बच्चे अनकॉन्शियस हो गए, फलाने जगह पे इतने बच्चे अनकॉन्शियस हो गए, क्योंकि डिहाइड्रेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। कहने का मतलब अगर कोई बंदा समर सीजन में अनकॉन्शियस हो जाए, द फर्स्ट थिंग टू रूल्ड आउट इज हाइपोग्लाइसीमिया। क्या होता है? हाइपोग्लाइसीमिया। अगर ग्लूकोज ठीक है फिर बाद में हम ईजी करते हैं और वो क्या हो सकता है? एटोनिक सीजर हो सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसका 5th नंबर टाइप लेके एब्सेंस सीजर। एब्सेंस सीजर, and this is for me the MCQs, very important to ask in the exams. एब्सेंस सीजर लेके एब्सेंस सीजर के 4-5 फीचर्स है। नंबर 1, एब्सेंस सीजर अफेक्ट स्कूल गोइंग चाइल्ड। नंबर 1 पॉइंट, ये स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में ज्यादा होता है। 5 से लेके 15 साल के दरमियान जो क्लास 10 तक एज होता है ना, उसके अंदर एब्सेंस सीजर बहुत ज्यादा होता है। तो इसमें जो एपिडेमियोलॉजी है किस बच्चों को अफेक्ट करती है? स्कूल गोइंग चाइल्ड। नंबर 1 कि दिस सीजर टारगेट स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। एक पॉइंट तो ये है। दूसरी बात इसमें ये है रिपीटेटिव जर्क्स इसमें आती है, बार बार बच्चा इसको जर्क्स आती है, रिपीटेटिव जर्क्स। लेकिन इसका एक क्वेश्चन है कितने अटैक्स बच्चे को आते हैं? पता है ये भी देखा गया है कि एक क्लास के 45 मिनट्स में एब्सेंस सीजर की जर्क्स 80 भी आ चुकी है, 80 दफा अटैक्स आ चुका है 45 मिनट में। लेकिन इसका एवरेज अगर हम ले लें तो ये बच्चों में दिन में तकरीबन कोई 30 से 40 अटैक्स पड़ते हैं, 40 एपिसोड के पर डे बच्चे को एब्सेंस सीजर कितना आता है? 30 से 40 एपिसोड। ठीक है, बट पोजीशन इंटैक्ट। पोजीशन इंटैक्ट से मुराद क्या है कि इसमें अगर ये जर्क आ भी जाए, एपिसोड आ भी जाए, बच्चा चेयर से नहीं गिरता, बच्चा चेयर से नहीं गिरता, इसलिए टीचर उसको सही तरीके से डिटेक्ट नहीं करता। अगर बच्चा गिर ही ना जाए तो टीचर उसको फोकस कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए दीज सीजर मिस इन द क्लास। सीजर पेशेंट को आते हैं, बच्चे को आते हैं। लेकिन अब देखें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है कि स्कूल गोइंग चाइल्ड है 7वीं क्लास में 8वीं क्लास में, टीचर पढ़ा रहे, वो उसके पीछे नोटबुक बना रहे, वो नोटबुक बना रहे, उसको जर्क आ गई। जहां पे जर्क आती है तो पेशेंट थोड़ी देर तक अपना होश व हवास खो देता है, फिर विद इन सेकंड बंदा क्या हो जाता है?